السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں پر غور و فکر کر رہے ہوں گے اور ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوں گے۔ ہر نام اتنا خوبصورت ہے اور اپنے اندر ایک پوری دنیا سموئے ہوئے ہے۔ جیسے کہ ہم نے نام دیکھا الواسع، تو سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے بے شمار بے تحاشا مغفرت والے، وسیع مغفرت والے، میری مغفرت کر دے۔ تو اس طرح آپ بھی دعائیں کیا کیجئے کہ ہر نام کو لے کر اور اس کے مطابق دعا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اس جوش کو جس کے ساتھ آپ نے رمضان شروع کیا تھا اس کو ٹھنڈا نہ پڑنے دیں۔ اگر سستی آ رہی ہے، اپنی انرجی واپس لائیں۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ عشرہ ختم ہونے کو ہے اور پھر آخری عشرہ شروع ہو جائے گا تو وقت ایسے پر لگا کے اڑ جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنی لیے بخشش کا سامان کر لیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی اس کے اوپر آمین فرمایا تھا۔ اور وہ دعا کیا تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی کہ ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو ہلاکت کی، تباہی کی بد دعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام اور آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھائیں، اپنی مسکینی، اپنی عاجزی کا اظہار اس کے سامنے کریں، اور اس کے لیے صرف کچھ دیر کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے کہ بالکل اپنا فون سائڈ پہ رکھ لیں، بالکل اکیلے ہو جائیں، اور اکیلے ہو کر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جتنی آپ کو تعریف آتی ہے، تسبیح آتی ہے، وہ بیان کریں۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی مسکینی کا، اپنی بے بسی کا اور اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ خاص کر آج جمعے کا دن ہے، اور اس دن تو ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ان دعاؤں میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے لیے بخشش کی دعا ہونی چاہیے۔ یہ جمعے کا دن بہت اہم دن ہے، بڑا قیمتی دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمعے کا دن پیش کیا گیا اس طرح کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ایک شیشے کی طرح کی چیز لے کر آئے جس کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ تھا، جیسے ڈاٹ لگا ہوتا ہے ایک سیاہ، اس طرح تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ جمعہ ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے، تاکہ یہ دن آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لیے عید بن جائے۔ تو یہ بڑا مبارک دن ہے، بڑی برکتیں لے کر آئے۔ برکت کا مطلب ہے کہ خیر، بہت خیر کثیر لایا ہے۔ تو اس دن کی اللہ تعالیٰ نے تو قسم بھی کھائی ہے سورہ بروج میں، وہ شاہد و مشہود، شاہد سے مراد بعض علماء نے جمعے کا دن ہی لیا۔ تو اس کی خاص سنتیں بھی ہیں، اس میں خاص کرنے کے کام بھی ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، جیسے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، جو پیدل جائے گا تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی روزوں اور 1 سال قیام کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ بہت ہی قیمتی ہے یہ جمعے کی نماز کی طرف جانا بھی، یعنی آپ اتنی بڑی نیکی کما لیتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے خاموشی سے بیٹھنا، پھر وہاں کے آداب کا خیال رکھنا، اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت یہ ضرور کیجیے، اور عصر کے بعد کی گھڑیوں کو خاص طور پہ ویلیو کریں کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس کے اندر میں نے بس دعائیں کرنی ہیں۔ اور اگر آپ مصلی پہ بیٹھ نہیں سکتے تو
चलते फिरते दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ज्यादा सलात भेजो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। यानी दरूद शरीफ पढ़ें। तो आज का दिन दरूद शरीफ के लिए खास है। आप देखें कि ये दरूद शरीफ ही है जो हमारे लिए दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खोल देता है। तो इसलिए चलते फिरते आज के दिन आपने बस दरूद शरीफ पढ़ते रहना। और इमाम इब्ने क़य्यिम ने तो दरूद शरीफ के बहुत ज्यादा फजाइल बयान किए हैं। जैसे कि फरमाया कि ये दरूद शरीफ ही है, और अहादीस से ही बयान फरमाए हैं कि दरूद शरीफ ही है कि एक दफा पढ़ने से अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक दफा पढ़ने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं। एक दफा पढ़ने से 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। दुआ से पहले पढ़ेंगे तो कबूलियत होती है दुआ की। अजान के बाद मसनून दुआ से भी पहले दरूद शरीफ पढ़ें तो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। इसको पढ़ने से किसी मजलिस में भी पढ़ेंगे उसमें बरकत हो जाएगी। और अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने तारीफ करते हैं उस बंदे की जो दरूद शरीफ पढ़ता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की उम्र में, उसके अमल में, उसके रिस्क में भी बरकत हो जाती है। इसके जरिए हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। दरूद शरीफ पढ़ने से दिल को तरोताजगी मिलती है। इससे परेशानियों से निजात मिलती है, फिकरात से निजात मिलती है। और आपको पता है उबई बिन काब बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि "ए अल्लाह के रसूल, मैं आप पे बहुत ज्यादा दरूद पढ़ता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है मैं कितना दरूद पढ़ा करूं"। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना चाहो पढ़ लो। तो कहते मैंने कहा चौथा हिस्सा पढ़ लूं। तो आपने फरमाया जितना चाहो पढ़ लो, लेकिन अगर ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मैंने कहा आधा हिस्सा। फरमाया जितना चाहो पढ़ लो, लेकिन इससे ज्यादा करो तो और बेहतर है। तो मैंने कहा 2/3 फिर कर लूं, यानी जितना मैं पढ़ता हूँ उसका 2/3। तो आपने फरमाया जितना चाहो पढ़ लो, लेकिन इससे ज्यादा करो तो बेहतर है। तो कहते मैंने कहा मैं आप पर दरूद ही पढ़ता रहूंगा। तो आपने फरमाया अगर तुम ऐसा कर लोगे ना, तुम्हारी सारी परेशानियों से निजात तुम्हें हासिल हो जाएगी और तुम्हारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। ये कितनी बड़ी फजीलत है। और दूसरी रिवायत में है, तब तो तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचा लेगा। ये तिरमिजी की रिवायत है। और क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, वो वो होगा जो आप पे सबसे ज्यादा दरूद भेजता है। तो अगर आपका कुर्ब चाहते हैं उस दिन तो दरूद पढ़ना लाजमी है। ये समझ लिए एक तोहफा है। और ये वो तोहफा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया जाता है। और आप सोचें, खुद सोचिए कि क़यामत के दिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामना होगा, तो आप क्या चाहते होंगे कि आप उनके कितने करीब हों। वो सोचें, कितने करीब होना चाहते होंगे, कितने करीब रहना चाहते होंगे, हशर के मैदान में कितने करीब होना चाहते होंगे। और जन्नत में जब उनसे मुलाकात होगी, उनका सामना होगा, कभी आपने सोचा वो मंजर कैसा होगा। कभी आपने सोचा कि उस वक्त मैं उनसे नजर मिला भी सकूंगी या नहीं, मैं उनसे क्या कहूंगी। तो दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि ये अ, जन्नत में ले जाने का भी बाइस है कि आपके दर्जे बुलंद होंगे, जाहिर है। और जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा क़यामत के दिन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर मैं आऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे तो खाजिन बोलेगा कौन है? तो फरमाएंगे मोहम्मद। तो जन्नत का खाजिन कहेगा मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया था कि सबसे पहले आपके लिए दरवाजा खोलूं और आपसे पहले किसी और के लिए ना खोलूं। तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में दाखिल होंगे, जो उनके करीब होंगे। फिर वो भी तो दाखिल होंगे ना। अल्लाह अकबर। और वैसे जन्नत के दरवाजे कितने हैं?
8 दरवाजे। और किस किस नाम के दरवाजे हैं? बाबुल रैयान है एक, बाबुल जिहाद है, बाबुल सदका है। बहुत सारे दरवाजे हैं ना। तो कोई लोग जो रोजा रखते हैं सिर्फ रमजान का ही नहीं, बल्कि अक्सर रोजा रखते रहते हैं। यानी ऐसा है कि जो चीज जिसकी पहचान होगी ना, वो उसी दरवाजे से जाएगा। यानी कई लोग बहुत कसरत से रोजे रखते हैं कि उनकी पहचान ही हो जाता है कि बड़ी ये रोजे रखने वाली है, तो वो बाबर रैयान से दाखिल होंगे। उनको उससे पुकारा जाएगा कि आप इधर से आइए, इधर से आइए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरवाजों के बारे में बताया था, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह कोई ऐसा भी होगा जो हर दरवाजे से पुकारा जाएगा? फरमाया हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो तुम होगे। नहीं, हम तो सोचते ना चलो एक भी दरवाजा हो गया तो ठीक है, वो जाना ही है ना जन्नत में। लेकिन जिसको हिर्स होती है ना नेकी की, वहां पे आला दर्जात की, बुलंद होने की, वो फिर ये पूछते हैं कि कोई ऐसा भी होगा जो हर दरवाजे से पुकारा जाए। तो अगर चाहते हैं हर दरवाजे से पुकारा जाना, तो कुछ अमाल ऐसे भी बताए गए ना जो हर दरवाजे से पुकारा जाएगा वो बंदा जो वो करेगा। जैसे कि वुजू के बाद आसान, कितना आसान है कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कितना आसान है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो अन्ना मुहम्मदन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द भी हैं और रसूल भी हैं, बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। ये सिर्फ इतने से कलिमात है। क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, जो तो कलमा है उससे पहले अशहदु अन लगा लें। ला इलाहा इल्लल्लाह तो आपको पहले आता है, और उसके बाद 4 लफ्ज हैं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्लिम की ये रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये कलिमात कह देगा, कहता है वुजू के बाद, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो अच्छी तरह पहले जो वुजू करे उसके बाद ये कहे। तो वुजू से बचे नहीं, वुजू को ऐसे मुश्किल ना समझे, वुजू को परेशानी ना बनाए अपने लिए। और ये ना सोचे कि वुजू ना होता तो हम बड़ी नमाजें पढ़ लेते, क्योंकि वुजू है तो बड़ी हमें मुश्किल होती है। बाज लोगों को नमाज पढ़नी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन वो कहते हैं हमें वुजू बड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि वुजू करने वाले के लिए देखें, जब वुजू करेंगे तो ये फजीलत पाएंगे ना, तभी तो आप ये कलिमात भी कह सकेंगे। तो इतनी बड़ी बशारत उस शख्स के लिए जो वुजू करता है और फिर ये कलिमात कहता है। फिर आप देखें कि वालदैन में से वालिद जो हैं, इनके बारे में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जन्नत का मिडिल दरवाजा है, मिडिल गेट है। यानी अपने वालिद को राजी करना, उनकी खिदमत करना, उनको साथ अच्छा सलूक करना, ये भी जन्नत में जाने का बायस है। और जन्नत का एक दरवाज़ा है। यानी चाहे तो आप इसको खोल लें अपने लिए, चाहे तो इसको अपने लिए बंद कर लें। वालिद से दुआएं ले लें, वालिद की खिदमत कर लें, तो खुल गया आपके लिए दरवाज़ा। और अगर ऐसा ना किया तो बंद हो गया। इसी तरह आप देखें, औरतों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि जो खास औरतों के लिए खुशखबरी है। यानी वो मर्द उसमें नहीं है इस हदीस के अंदर, कि वो बड़ी आसानी से जन्नत में जा सकती हैं। और उनके लिए क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपनी शौहर की फर्माबरदारी करे, उसके लिए कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाजों में से किसी में भी दाखिल हो जाओ। औरतें बहुत शिकायत करती ना, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो कुछ है नहीं, हमारे लिए तो। आप देखें ये इतनी बड़ी खुशखबरी है खवातीन के लिए, कि जो ये शिकायत करती हैं सिर्फ 4 काम कर लें वो जा सकती हैं। आदमियों के लिए तो नहीं है ये। लेकिन कभी मैंने किसी मर्द को नहीं सुना कि वो इस चीज़ पे इतराज करे कि ये क्या बात हुई कि औरतों के लिए सिर्फ इतने से काम करने पे 8 दरवाजे खुल जाएंगे और हमारे लिए क्यों नहीं। जबकि मर्दों के लिए जो काम होता है तो औरतें खास तौर पे बहुत
शिकायती रवैये के साथ कहती हैं लो हम क्या करें, इनके लिए तो ये कर दिया गया और हमारे लिए क्यों नहीं किया गया। तो आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस औरत की तरफ नजर भी नहीं करके देखेगा जो अपने खामिद की नाशुक्री हो। तो यहाँ पे भी है अपने खामिद की फर्माबरदारी, लेकिन उन उमूर में जो अल्लाह ताला की इताअत के ही हैं। यानी ये ना हो कि अल्लाह की नाफरमानी के किसी काम के अंदर शोहर की फर्माबरदारी शुरू कर दें, वो नहीं होगा। और जहाँ पे अपनी इज्जत की हिफाजत करना, उसमें पर्दा भी आ जाता है कि पर्दे आप करते हैं तो आप अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं, तो ये भी जरूरी है। इसमें बहुत सारे अहकामात आ जाते हैं अपनी इज्जत की हिफाजत करने में। नामहरम मर्दों के साथ बहुत फ्रैंक नहीं होना, उनके साथ बिल्कुल ऐसी मिक्सिंग नहीं होना कि अ, कोई पता ही ना चले कि गैर महरम कौन है और महरम कौन है। और ये पर्दे के अहकामात का ख्याल रखना सब इज्जत की हिफाजत में ही है। तो अल्लाह ताला ने औरतों के लिए बड़ी आसानी कर दी इस लिहाज से कि वो आसानी से जन्नत में जा सकती हैं अगर वो ये चार काम कर लें। तो बात चल रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजने की। तो अगर चाहते हैं कि वहां पे उनका साथ हो, तो बहुत सारे मौके हैं जिनके ऊपर हम दरूद भेजें तो हमारे लिए बरकतों के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो किस किस मौके पे दरूद पढ़ना चाहिए? जैसे नमाज में तो आप पढ़ते हैं तशहुद में, नमाज जनाजा में भी दूसरी तकबीर के बाद होता है। इसी तरह ईद की नमाज पे, जुमे की नमाज के खुतबे में होता है। और अजान के बाद मैंने आपको बताया दुआ के वक्त, मस्जिद में दाखिल होते वक्त भी आप पढ़ें। आजकल तो मस्जिदों में जा रहे हैं तो आप ऐसे बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक। और जब निकल रहे हो तो बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अब्वाब फदलिक। इस तरह से, इस तरह आप उम्रा या हज के लिए जाते हैं तो सफ़ा मरवा पे भी जब खड़े होके अल्लाह अकबर कहते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ये वाला पढ़ते हैं, तो उसके बाद भी दरूद शरीफ पढ़ के फिर दुआ मांगनी चाहिए। मजलिस में भी, जिस मजलिस में हूँ, इज्तिमा के वक्त और इख्तिताम पे भी दरूद शरीफ पढ़ें। वरना हदीस के मुताबिक ऐसे है जैसे मुर्दार के पास से उठें, मुर्दात की बदबू और ताफुन के पास से उठें। कोई चाहेगा कि गार्बेज के साथ बैठ के अपनी मजलिस लगाए, तो समझ लें गार्बेज से भी ज्यादा कि किसी मुर्दार की कितनी सख्त स्मेल होती है, उसके पास से कोई उठे। फिर इसी तरह जब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए, उनका जिक्र आए, तब भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। फिर सुबह और शाम की जो आप दुआएं पढ़ते हैं, सुबह शाम के जो अज़कार होते हैं, उसमें भी 10 दफ़ा आपको दरूद शरीफ पढ़ना है सुबह, और 10 दफ़ा शाम को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिलेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे आप जाते हैं तो वहां पे भी दरूद शरीफ पढ़िए। फिर मजलिस में है, जिस मजलिस में भी है, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी किसी भी दावत में जाते या किसी जनाजे में शरीक होते या किसी मौके पर भी किसी किस्म की मजलिस में भी होते, तो अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते और दुआ मांगते और फिर उठते। इस तरह जब बाजार भी जाते थे तब भी यही करते थे। तो बाजार में कितने लोगों को याद रहता है, या हमारी पार्टीज वगैरह, दावतें वगैरह, इवन इफ्तार भी हो, तब भी याद नहीं रहता कि अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें या हम दरूद शरीफ पढ़ें। क्योंकि ऐसी मजलिस जहाँ पे अल्लाह का जिक्र ना हो, वो क़यामत के दिन इंसान के लिए हसरत बन जाएंगी कि मैं क्यों चला गया उस मजलिस में, क्यों मैंने उसको अटेंड किया। तो ये ना हो कि वहां से अपने ऊपर हसरतें लेकर आए और पछताएं उनके ऊपर क़यामत के दिन और बदबू और ताफुन के पास से उठे। अगर ना अल्लाह ताला का जिक्र किया, अगर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजा। फिर खत्म कुरान के बाद भी आप दरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ करें। और इमाम इब्ने क़य्यिम ने इसको जायज़ करार दिया कि खत्म कुरान के वक्त आप दुआ कर सकते हैं। इमाम अहमद वो भी इसको जायज़ करार देते हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान करीम ख़त्म करते थे तो अपने घर वालों को जमा कर लेते थे। आपका भी कुरान हो सकता है ख़त्म होने वाला हो या हो चुका हो, तो आप याद रखिए कि ख़त्म कुरान के बाद आप फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस
तरीके को आप भी कर सकते हैं। सब घर वालों को जमा कर लें और दुआ कर लें। तो रंजो गम के वक्त, मुसीबत के वक्त, कोई परेशानी हो, कोई ऐसी चीज हो, तो आप दरूद शरीफ पढ़ें। और दरूद शरीफ आप जब बगैर वजू के हैं तब भी पढ़ सकते हैं। जिस वक्त आप खवातीन पाक नहीं है तब भी दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मुसलमानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो, दुआओं में, मस्जिदों में और भी हर जगह, हत्ता के शादी का पैगाम देते वक्त भी तुम इसको ना भूलना। कितनी बड़ी उन्होंने बात बताई ना। शादी का पैगाम दे रहे हैं तब भी दरूद शरीफ पढ़ें आप, क्योंकि दरूद शरीफ बरकत लेकर आता है, खैर के दरवाजे खोलता है। और अल्लाह ताला इस दरूद शरीफ को का उसने खुद हुक्म दिया है, तो हम उसके हुक्म की तामील कर रहे होते हैं जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो इसको अपनी एक आदत बना लीजिए कि हमने ख़ास तौर पे अ, जुमे के दिन तो पूरा दिन दरूद शरीफ पढ़ना है। और हर किस्म की हालत में, आप पाक हैं या नापाक हैं, आप लेटे हैं या बैठे हैं या खड़े हैं या काम कोई कर रहे हैं, उस वक़्त भी आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और जुमे का दिन सदका करने का भी दिन है। एक जगह पे आता है जुमे के दिन नेकियों का ज्यादा अजर मिलता है। तो सदका सहाबा का तरीका था, जुमे के दिन सदका किया करते थे। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप सदक़े के लिए कम से कम, हर रोज नहीं करते तो कम से कम जुमे को करें, और हर रोज करते हैं तो जुमे को ज्यादा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काबा के साथ टेक लगाए बैठे थे। फरमाया कि हल हलाक हो गए, लोग हलाक हो गए, रब्बे काबा की कसम, तबाह हो गए, रब्बे काबा की कसम। अबू जर गिफारी पास बैठे थे, वो चौंक गए कि किसकी बात हो रही है। पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन लोग हैं जो तबाह हो गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए? दो दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तो आपने फरमाया, वो जिनके पास माल बहुत ज्यादा है, वो जिनके पास माल की कसरत है। अल्लाह अकबर। फिर आपने एक एक्सेप्शन दी, सिवाय उनके जो आगे पीछे दाएं बाएं खर्च करते होंगे। किस तरह खर्च? मॉल में नहीं, आप ऑनलाइन ऑर्डर देने में नहीं, कपड़े और जेवर के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में। तो इस रिवायत से पता चलता है, जिसके पास जितना ज्यादा माल है, वो डर जाए कि अगर वो दाएं बाएं आगे पीछे, यानी जो कह रहा है उसके ऊपर खर्च करे, जिधर उसको मौका मिला है उधर खर्च करे। कभी ये ना कहे, अच्छा फिर अब हमें ही कह देते हैं, हमें ही पूछने आ जाते हैं, पहले उनको दिया है अब ये भी आ गए हैं, अब मस्जिद में मैंने तो कल इतना डोनेशन दे दिया हुआ है, तो अब फलां फोन कर दिया है कि अब मुझे भी ज़रूरत है, और अभी मैंने फलां की ज़रूरत पूरी की थी, अब उसने भी कॉल कर दी, अब वो भी मांगने आ गया। नहीं, जहां पर भी मौका मिलता है ऐसे समझे कि ये तो मेरी लॉटरी लग गई, जिसको कहते हैं। मैं जिधर भी मुझे चांस मिले, मैं इधर भी दूं, उधर भी दूं, उधर भी दूं। ये है मतलब, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ देने का, वरना हलाक हो गए मालदार। अल्लाह अकबर। जब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया था अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि तेरे सारे सहाबा जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और अब्दुर्रहमान सबसे बाद में आएगा। तो पूछा क्यों? फरमाया तुम्हारे माल की वजह से। ये सुनना था हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने। अपना वो जो काफिला आ रहा था, जिसका एंड नहीं नजर आता था, इतना बड़ा काफिला था, वो सारा का सारा फरमाया मैं सदका करता हूँ। ये वो लोग हैं जिनको माल का ये नहीं है कि इन्हों के माल में कोई एक पाई भी हराम की होगी, सारा का सारा हलाल है। और जिनका माल ऐसा हो कि उसमें पता ही नहीं कि कौन सा हला और कितना हराम, कौन सा इसके अंदर पैसा कहीं हराम का मिल चुका है, उनको तो पहले ये जवाबदेही करनी होगी कि ये कहाँ से कमाया है, और फिर उसके बाद कहाँ खर्च किया, सारा हिसाब देना पड़ेगा।
تو یہ بہت ہی مشکل ہے، مال کے ساتھ جتنا مال زیادہ، حساب زیادہ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے زیادہ مال والے۔ تو ہم اس قدر زیادہ مال کی ہرس رکھتے ہیں کہ بس زیادہ ہو جائے، میرے پاس زیادہ جمع ہو جائے، اس کے پاس کتنا، میں اسے آگے نکل جاؤں۔ تو یہ بھی سوچ لیں پھر کہ جو کمایا ہے پھر یا تو اس کو بے دریغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ جانتے کیسے خرچ کریں؟ چلیے میں آپ کو ایک مثال ہی دے دیتی ہوں، اس سے زیادہ سمجھ آ جائے۔ شادی ہوتی ہے تو کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ڈیکوریشن پہ بھی خرچ کرتے ہیں، میک اپ پہ بھی خرچ کرتے ہیں، کپڑوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، تحفے دینے دلانے میں بھی خرچ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا ہال کرنے پہ بھی خرچ کرتے ہیں، کھانا بہترین کرنے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ کسی جگہ پہ بھی انسان کہتا ہے کمی نہ رہ جائے، ہر ایک جگہ پر فل کیپیسٹی جتنی اس کی ہوتی ہے نا وہ لگا دیتا۔ قرض بھی لینا پڑے تو وہ بھی قرض لے کے بھی لوگ شادیاں، گرینڈ شادیاں کرتے ہیں۔ تب تو نہیں انسان سوچتا کہ ہائی اتنے پیسے یہاں لگا دیے، کھانے پہ لگا دیے، اب وہاں نہ لگاؤ، اسٹیج بنانے پہ لگا دیے اب ڈیکوریشن پہ نہ لگاؤ۔ نہیں، انسان کہتا بس بیسٹ ہو، جس کی جتنی سکت ہے، غریب بندہ بھی اٹھ کے وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی شادی ایسی کروں کہ لوگوں کو یاد رہے، میں بھی شادی ایسی کروں کہ میرے رشتے دار جو ہیں وہ سن کے دیکھ کے آش آش کر اٹھے۔ تو جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اس میں میکس آؤٹ کرتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اس سے بھی بڑھ کے کریں، اور خاص طور پہ رمضان میں جو مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں ہر نیکی کئی گنا بڑھ جائے، تو اس میں کیسے کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارا جو بھی ہم اس کے راستے میں دیتے ہیں۔ اور آج کا جو ذکر ہے وہ یہی ہے، درود شریف۔ اور آج میں مختصر والا بھی درود آپ کو بتا دیتی ہوں، اور وہ ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ آپ کو یعنی اگر مختصر درود پڑھنا ہے تو، اور آج دعا کیجئے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زوال سے، کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ نہ ہو نعمتیں مجھ سے چھن جائیں۔ یہ صحت کی نعمت، اولاد کی نعمت، گھر بار کی نعمت، نوکری کی نعمت، اوپر والا ہاتھ ہونے کی نعمت، بہت بے شمار نعمتیں، یہ اسلام کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ کہیں کوئی نعمت اس وجہ سے نہ چھن جائے کہ میری ناشکری ہوئی، یا میری طرف سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے یا اللہ مجھ سے نعمت نہ چھیننا۔ وتحول عافیتک، اور تیری عافیت کے پلٹنے سے عافیت واپس چلی جائے۔ ہم ابھی عافیت میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ عافیت وہ لے لے۔ وفجاءت نقمتک، اور تیری سزا کے اچانک آ جانے سے۔ وجمیع سخطک، اور تیری ناراضگی کے کاموں سے، ساری ناراضگیوں سے، تیری تمام ناراضگیوں سے ہے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، کچھ بھی عمل کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو کے ہم سے واپس لے لے، یہ چیزیں اسی نے دی ہیں نا، اور اس نے واپس لے لی تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں سبھی کچھ چاہیے، یا اللہ تعالیٰ تیری رضا بھی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ تیری سزاؤں سے پناہ بھی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ عافیت بھی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی برقرار چاہیے۔ تو اس دعا کو ضرور مانگے، چونکہ جمعے کا دن ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری تفسیر کی کلاس بھی ہوگی، تو اس لیے آج ہم اسماء حسنہ میں سے نہیں کریں گے، آج ہم انشاءاللہ تعالی مختصر رکھیں گے تاکہ آپ اپنی کلاس بھی لے سکیں۔ قرآن کی طرف ضرور آئیں، جو ابھی تک قرآن کریم سے نہیں جڑے ہوئے، جڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنے کے لیے ایفرٹ نہیں کر رہے، کوئی کلاسز نہیں لے رہے باقاعدہ، کہیں انہوں نے اپنے آپ کو انرول نہیں کرایا ہوا، تو دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ دل کا سکون ہے۔
बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और अ, जैसे कि आपको मैं किसी बड़े का ही कॉल बताऊं, जो जिनको शेखुल इस्लाम कहते हैं, इमाम इब्ने तैमिया, वो जब कैद किए गए, वहां पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता जाता था, मुझे निदामत होती थी कि मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कुरान के बगैर क्यों गुजार दिया। हालांकि ये शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया हैं, जिन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी। बहुत कम लोग हैं जिनको शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया गया। फिर अरब दुनिया के एक मुहद्दिस हैं, शेख अबू इसहाक, उनको कुछ अरसे के लिए बैन कर दिया गया था कि वो वाज नहीं कर सकते, खुतबा नहीं दे सकते, लेक्चर नहीं दे सकते। इस अरसे में उन्होंने भी कुरान करीम को पढ़ना शुरू कर दिया। जब उनके लिए बैन खत्म हुआ और वो वापस आए, तो जानते हैं उन्होंने क्या बात फरमाई? फरमाते हैं, हाय हाय काश मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुरान को दे दी होती। अभी ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, अभी ऐसे नहीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी जाया कर दी थी, बल्कि वो हदीस की खिदमत में लगे हुए थे। लेकिन आ, फिर भी कहते हैं कि जाहिर है कुरान हदीस से तो बढ़ के है ना, कुरान उससे तो ऊपर है। तो फिर भी कहते हैं कि मैंने सारा वक्त क्यों नहीं कुरान को दे दिया। यानी ये सब लोग अपनी जिंदगियों के बड़े बड़े काम करने वाले, बड़ी बड़ी दीन की खिदमतें करने वाले, वो भी ये कहते हैं कि कुरान को वक्त देना, कुरान को वक्त देना। तो अगर अभी तक आप इनरोल नहीं है, इस रमज़ान में थोड़ा सा मज़ा चख के देखिए, हमारी क्लास में आइए, शामिल हो जाइए, और इसमें ज़रा सीखेंगे किस तरह से पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। और हो सकता है आपका दिल आमादा हो जाए इस रमज़ान में, जो कुरान का महीना है, कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी कुरान को समझ के गुजारनी है, कुरान को सीख के गुजारनी है। और इस चीज़ को लेकर परेशान ना हुआ करें कि उसके बाद पता नहीं अमल हो सके या नहीं हो सके, इसलिए तो मैं नहीं पढ़ती सीखती। नहीं, अमल तो अगली सीढ़ी है, पहले सीखें तो सही, समझे तो सही। कुरान आपको आमादा करेगा अमल करने पे भी, आपको हेल्प करेगा, आपको चलाएगा, आपको खड़ा कर देगा। ये दुनिया और आखिरत में इज्जतों को समेटने की एक चाबी है। कुरान के जरिए इज्जत मिलती है, दुनिया में भी आपको मिलेगी, आप देखिएगा। आप अपने आप को खालिस तो करें कुरान के लिए, और आखिरत में भी मिलेगी। तो अल्लाह ताला कुरान करीम को हमारे दिलों की बहार बना दे, और अल्लाह ताला इसको हमारे सीनों में बसा दे। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए सिफारशी बना दे, हमारे लिए वकील बना दे क़यामत के दिन, और हमारी कब्रों का साथी बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।